Hi guys, this is Dhananjay here. Welcome all of you, and we are going to talk about the various possible careers that you can get after 12th. Okay, this particular session is for various people who actually look to join in commerce line. Generally अपना इंडिया में प्रॉब्लम ये होता है कि 10th के बाद में कौन सा लाइन ले, किसमें जाए, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए, साइंस में जाए, और 12th के बाद में क्या बने। सर कॉमर्स ले लिया, अब क्या करें। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सिर्फ बीकॉम करेंगे तो कुछ आगे प्रोस्पेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, मेरे लिए सूटेबल क्या हो सकता है। सो बेसिकली करियर बनाना एक बहुत बड़ा एजेंडा हो गया है सारे पेरेंट्स के लिए, करेक्ट है। और स्टूडेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन कि सर मुझे जो बनना है वो मैं तय करूंगा, मेरे पेरेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में मेरे को क्या अच्छा लगता है। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी वन क्वेश्चन मार्क. ओके, you can always communicate with me. This is a very simple interactive ऑनलाइन सेशन, ठीक है, जिसमें आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा धीरे धीरे बदलना जरूरी था। तो हम कोशिश वही करेंगे कि हम आपको प्योर काउंसलिंग देके, गाइडेंस देके हम आपका जो पर्सपेक्टिव है वो अपग्रेड करें. You will start feeling much better that there are a lot of things in life that you can do. You must do things which you love to do. जनरल क्वेश्चंस दिमाग में होता है कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th कॉमर्स, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द 12th. आपको कुछ भी मन में सवाल हो तो वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर टैप करके यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. ओके, दिस सेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, the first part is 30 minutes, which I'm going to speak. I'm the CEO of Moksh, and Moksh is one of the largest education group in India, which is serving in very specific lines. Okay, very unique subjects के ऊपर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. द वे द एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग, we are trying to bring in, and to a great extent we have brought good changes, positive changes. So it's a company which is very well grown out, 8 years of experience, run by professionals, and you know, lot of maybe more than 50,000 counseling people. I've counseled more than 50,000 people online without seeing them. Okay, of course nowadays it allows you to see me, but I'm saying I have never seen any students on the online sessions that I conduct for the last 4 years, 5 years. I think this online has been started off by us. I'm talking from home, so we have this corona thing which is allowing us to talk as much as we can with the students. I have more time to spend with them. 7:30 से 8 o'clock तक मैं आपको एक नया कंसेप्ट देने की बात कर रहा हूँ. आप अपने करियर के बारे में दूसरे तरीके से सोचना चालू करोगे, और 8 o'clock से 8:30 तक, ठीक है, Mr. Chirag will come and he will explain you the program which can change your life. See, these two things you will have to understand and ask questions. So concept and program to completely set up yourself in a career which you enjoy is something which we are going to talk about. And as I told you, Moksh has three different divisions. Moksh Mobility. So we are one of the fastest growing company in the last 8 years, where we place Indian students abroad for, you know, lot of programs. Basically we are focusing on 18-year students, whether it is abroad or whether it is online coaching. So we have a division which is Moksh Academy. Moksh Mobility is abroad placements, Moksh Academy is online coaching, and Moksh Travels is youth travels. So youth travels between 18 to 21 are the students which we take them for short trips, we take them for exposure. The travel teaches them, they become more mature, more confident, they can talk on more subjects, their entire outlook becomes different. So these are the three different areas where we work, and we work on massive scale. Okay, so this is how where we are, this is what I am, and this is what I think. Basically
I just switched off the camera because the internet was not that good. Who wants to be normal when you can be unique? Every person in this world has some or the other different special skill which is hidden inside him. There is something called a passion. You are trying to build your professional career. आपका CV बनता है, आप जब पहले इंटरव्यू के लिए जाते हो तब they are going to look at your CV, your resume, and they'll say that okay, you seem to be suitable to me or you are not. Correct? Now this is the way most of the people think. एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी के हिसाब से लोग देखना चाहते हैं, भाई मैं बीकॉम करूंगा सर, उसके बाद में मैं सीए की कोशिश करूंगा, नहीं मिला तो मैं कुछ और सीएस की कोशिश करूंगा, नहीं मिला तो मैं कुछ और ट्राई कर लूंगा, मैं देखूंगा क्या करूंगा. दे आर नॉट वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी सीरियस. सिंपल सवाल है, आप यही बोलोगे सर क्या है यार ये, सर पार्टी करने का टाइम है, गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम है, हार्मोनल चेंजेस 18 साल की उम्र में सबके होते हैं, तो क्या अभी आप मुझे बोलोगे कि सर मैं सीरियस बच्चा हो जाऊं कॉमर्स में आके? तो मैं कॉमर्स में हूं क्यों, फिर तो मुझे साइंस में जाना चाहिए. करेक्ट है? सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन यू. बट मैं नहीं बोल रहा हूं आप बाकी सब छोड़ दो, करियर के बारे में सीरियसनेस लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. और इसके लिए टाइम नहीं निकालना, एक सिर्फ अपने आप को सोचना है, अपने आप खुद. यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू टॉक टू मी अबाउट इट. अगर आप एक हर्ड मेंटालिटी के हिसाब से अगर आप अपनी करियर को फॉर्म करना चाहते हो तो इट मे बी leading to a good career or it will not, but there are more chances that you may be happy, you will not be happy. आपके अंदर जो पैशन है उसके साथ में करियर को अगर हम फॉर्म करना चाहेंगे तो वन थिंग इज गारंटीड कि ये वाली मछली हैप्पी जरूर होगी. उसको जो अच्छा लग रहा है उसी के ऊपर फोकस कर रहा है, उनका जो इंक्लिनेशन है उसी में वो ग्रो कर रहा है, उनके जो स्ट्रेंथ है उसी के ऊपर स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और वही स्किल्स को अपने काम में यूज कर रहे हैं. आई होप ये कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वी आर. सो व्हाट डज मोक्ष एकेडमी हेल्प यू टू डू इज टू बिल्ड योर पैशन सीवी. आपका जो पैशन है उसके हिसाब से आपको करियर के अंदर हेल्प होना चाहिए ताकि आप एक हैप्पी ह्यूमन रहो. आप एक उस टाइप से अपनी करियर को फॉर्म करो कि जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, आपको काम करने के लिए मजा आता है. आप मुझे बोलोगे कि सर यार ये बोरिंग लेक्चर सुनने के लिए मुझे नहीं जाना है कॉलेज के अंदर. मोस्ट ऑफ द पीपल गिवन अ चॉइस विल नेवर अटेंड टू अ लेक्चर. करेक्ट है? आपको क्या लग रहा है, व्हाट वुड यू प्रिफर? जो लेक्चर्स चल रहे हैं कॉलेज के अंदर उस पे जाएंगे या कोई ऐसा कोई हो कि जो प्रैक्टिकली आपको सिखाए कोई चीज, वो सीखोगे, इंडस्ट्री के लोग आएंगे वो सीखोगे? व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस? 50% एग्जैक्ट लोग हैं आई वुड प्रेफर टू स्टडी हार्ड ड्यूरिंग बीकॉम, मतलब मैं पढ़ाई के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा. और 50% बोल रहे हैं कि सर पढ़ना तो है ही है, साथ में मैं पार्टी भी करने वाला हूं, मैं पहले से बता रहा हूं, मुझे बोरिंग पढ़ना नहीं है. ठीक है ना? सो ये जो 50% जो हार्ड पढ़ाई करने को तैयार है, क्या वो उनके लिए भी एक सवाल है, क्या कॉलेज के एकेडमिशियंस के लेक्चर सुनोगे या बीकॉम जो कर रहे हो उसमें अगर इंडस्ट्री के प्रोफेशनल आ जाए? फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स में हो, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं सीए बनना चाहता हूँ. अगर आपके सामने कोई सीए आ गया और वो मेरी जगह पे बोलना चालू किया आपसे, he starts talking about it or she starts talking about it, how the journey happened, what were the difficulties that they faced, what is the work that they are into, what are the challenges that they are facing, how much money are they earning, how did they set up the entire career starting from 10,000 to 10 lakhs, how did they earn, what are the kind of specialties that the trades which they have which has helped them. So industry professional अगर आपके सामने आएगा तो क्या आपको लगता है कि आप वो प्रेफर करोगे या आप ऐसे करोगे कि सर सीए के अंदर अकाउंटिंग होता है, मुझे तो पहले वही सीखना है, सिर्फ मुझे कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है,
मुझे एम्प्लॉयबिलिटी से मतलब नहीं है, मुझे थियरी सीखनी है पूरी, उसी के ऊपर फोकस रखना है। आपको क्या लग रहा है कि क्या सही तरीके से आपको करना चाहिए? अब आपका दिमाग धीरे 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 जो मैं ड्राइव करना चाहता हूं उस पॉइंट पे आएगा। सिर्फ हर बच्चे को देखो, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, मैं कभी मिलने वाला नहीं हूं, ये सिर्फ आधा घंटा मैं आपके साथ में निकाल रहा हूं। So you, all of you will have to be honest enough to answer. Feel free to exactly answer what you really think. This is just going to be an interesting conversation, and you are going to know yourself in a much better way. This whole session has been designed to quickly explain you where you stand, where you wish to be, and how you can reach to be the best in that. Yeah. 19% of the students are saying I would learn from academicians. Okay, that's the most important thing that I wish to do. 38% says that it's very important for me to learn the practical aspects actually from the industry professionals. 31% says I need both. Sir, those boring lectures in the class will also give me something. The knowledge part is going to be given by them, though it may not be easily directly अप्लाइड इन द प्रैक्टिकल लाइफ, बट मेरे पास फंडामेंटल नहीं होंगे तो मैं इंडस्ट्री को नहीं कर पाऊंगा सर काम। सो आई नीड दैट डिग्री टू गेन द बेसिक नॉलेज, बट मुझे पता है कि वो कॉलेज में सीखने से मैं इंडस्ट्री का एम्प्लॉयबल नहीं बनता, बट कॉलेज में नहीं सीखने से मैं 100% एम्प्लॉयबल नहीं बनूंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू। एंड 13% सेज आई रियली नीड हेल्प to make me understand more about career planning. We are there to help. There are every slide you can see the numbers. Take a pic and keep those numbers with you, or our guys will call you back. Point is very simple. दोनों चीजों की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है एंड इंडस्ट्री इनसाइट की जरूरत है। हमारे में कुछ तो ट्रेड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसको नंबर क्रंचिंग अच्छा लगता है, किसको बेस अकाउंट्स अच्छा लगता है, किसको रिस्क कितनी होनी चाहिए उसके कैलकुलेशन अच्छे लगते हैं, किसी में गैम्बलिंग का ट्रेड्स है, किसी में कुछ अलग है। हर आदमी के पास फाइनेंस, किसी का कैलकुलेशन पावर फास्ट है, किसी ना किसी चीज में, हर कॉमर्स में अंदर घुसने वाले स्टूडेंट का कोई ना कोई ट्रेड अच्छा होता है, which we have a way to find out, because active learning sessions will help us to understand what is your trade and what could be your best aspect. But पहली चीज ये है, डिग्री आपको जॉब नहीं देगी, सिर्फ आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी है based on your trades, which will help you to get into a much better employable, make you much more employable. और ये जो बीकॉम आप करोगे उसी के अंदर ये स्किल्स डेवलप करनी है, ताकि जब आप बाहर आओ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाहर आओ, तभी आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप हो चुकी होंगी जो दूसरे 98% के पास नहीं है। I hope all of you are able to understand what we are telling you. This is a standard route. मैंने बताया था वो मछलियां, ब्लू मछलियां एक साइड जाती है, एक रेड मछली ऐसे जाती है। ये वो वाली ब्लू मछलियां हैं जो सारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स एक ही तरीके से सोचते हैं। Absolutely, Zoya, your question is something which I'm going to take right now. So there are a lot of things that ऐसा नहीं है Zoya, everybody is most welcome to ask questions. Zoya has asked me first question today that sir ऐसा क्या करें हम parallelly कि ताकि हम अपने आप को अपग्रेड कर पाए। चीज ऐसी है कि बीकॉम करते हो, साथ में बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर आपको क्या सूटेबल है वो पहले आप जानो। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आपको क्या 98% को फॉलो करना है, या आपको वो 2% में जाना है जो बाकी सभी लोगों से आगे है, सभी लोगों से ऊपर है। कोई सीएफओ बन गया है, कोई फाइनेंस कंट्रोलर बन गया है, कोई फॉरेक्स हेड बन गया है, कोई कमोडिटीज मार्केट का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। तो फाइनेंस और अकाउंट्स में 50 तरीके के जॉब होते हैं, 50 तरीके के डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं। आप
यही चीज ग्लोबल हो सकती है, यही चीज लोकल हो सकती है। हमारे इंडिया में 12वीं में सही करियर काउंसलिंग नहीं होने की वजह से और हर बच्चे का पैशन ट्रेड्स जानने की तस्दीक कोई नहीं लेने की वजह से आप वहां पे जाते हो जहां पे आपको धक्का लगता है। 10 स्टूडेंट्स, 10 फ्रेंड्स आपके सीए फाउंडेशन के लिए भागते हैं, आप भी भागना चालू करोगे। 10 स्टूडेंट्स बीबीए करते हैं, आप भी वहां से एमबीए करोगे। 10 स्टूडेंट्स आपके आईसीडब्ल्यू में जाते हैं या एलएलबी करते हैं, आप भी करते हो। आपको सही दिशा में जाने के लिए करियर गाइडेंस होना जरूरी है। आप जैसे एक घर बनाते हो, उसको घर को सजाते हो, करेक्ट है? You need an interior decorator to make, you know, if you give it to an interior decorator, that house will look very different because that is his job. Similarly, you are making your career, somebody will have to back you up with, आप में जो पैशन है उसको सही दिशा में डालने के लिए आपके पास वो पुश चाहिए, आपको सही तरीके से जगह पे रखने के लिए और सही जगह पे आपको you know, we need to push you to the right place. So there are many such careers which are available. Now I will tell you, I am not saying you which suits you more. I am saying what would I love to pursue. If I am a gambler, I might as well go for risk management. That's a huge line in this finance world. If I like those accounting things, you know, I might do, you may not even heard about ACCA. You would only know CA. You may not know CPA. You only know CS. So thing is, at this stage अगर आपको अपने सारे जॉब रोल्स अगर दिखाई दिए तो आप उस दिशा में अपने आप में कुछ ऐसा स्किल ऐड करेंगे जो दूसरे लोगों से ज्यादा हमको एम्प्लॉयबल बनाए। केक इतनी ही है, खाने वाले ज्यादा है। इंडिया में यही सिचुएशन है। इसके दो ही रास्ते हो सकते हैं निकलने के, ठीक है? आपके पास एक, आप केक को बड़ी कर दो। इसका मतलब है जब बाकी सब यहाँ पे देख रहे हैं, आप ग्लोबल बन जाओ, बाकी सबको लोकल एम्प्लॉयमेंट में जाने दो। आप अपना विजन बड़ा करो, तभी ऐसा लिफ्ट मिलेगा, तभी ऐसा लोगों की नजर में आओगे। नहीं तो ऐसे डम्ब बच्चों की तरह आप भी बीकॉम होके 12,000 15,000 की सैलरी में काम करोगे। यार लाइफ में सबसे एक्सपेंसिव चीज है टाइम। अगर आप सही चीज सही टाइम पे करते हो तो आपकी लाइफ के बहुत साल बच जाते हैं। जो थियरी और प्रैक्टिकल के बीच में जो गैप है वो अगर हम यूजी लेवल के अंदर ही, मतलब बीकॉम करते करते या बीए बीबीए करते करते हम बदल डालें, हम ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम लोग ऐड कर दें अपने सीवी में। सिर्फ डिग्री के पीछे मत जाओ। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे बच्चे को 10th में ना 86% आया। मैं बोला फेंक दो उसको, वो जो रिजल्ट है उसको फेंक दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे को क्या अच्छा लगता है वो पहले पूछो, उसके हिसाब से उसको उस लाइन की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को ऐड करो। लिफ्ट उसको लाइफ में खुद मिलने वाली है। ही विल बिकम समथिंग इफ ही लव्स टू डू समथिंग। ही विल नॉट बिकम एनीथिंग if he really doesn't like to do some things, correct? So let's do something which we love to do, and let's increase and enhance our employability skills to become somebody in that usual set, not in a usual box. We will be in some special 2.5%, 2 to 2.5% ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट रोल्स में। अब आप बीकॉम की बात करो तो 4 तरीके के एम्प्लॉयर्स हैं इंडिया में। बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और अकाउंटिंग फर्म्स हैं। अब ऐसे 4 एम्प्लॉयर बेस के अंदर आपके पास अलग अलग तरीके के जॉब रोल्स होते हैं। ये मैं सिर्फ जनरल बीकॉम और बीबीए वाले जहां जाते हैं उनके लिए बात करता हूं मैं, ठीक है ना? जो फाइनेंस ओरिएंटेड बच्चे हैं, जो अकाउंट्स ओरिएंटेड बच्चे हैं, जिसको प्रोफेशनल बनना है, जिसको ग्लोबल बनना है, जिसका विजुअलाइजेशन बड़ा है, जो सीरियस बनते हैं, पार्टी करो, मजे करो, बट करियर को लाइटली मत लो। बस दैट्स इट। आपको क्योंकि करियर प्लान करोगे और अच्छी तरह आप अपने आप को, अब मैं 20 का हूँ, मैं अभी 18 का हूँ, 20 में ये होऊंगा, 23 में यहाँ होऊंगा और 28 में यहाँ होना चाहिए।
ये अगर आपको दिखना चालू हो जाए अगले 10 साल का ट्रेलर अपने आप को, तो बस है, बाकी का पूरा दिन जिंदगी पूरा टाइम पास करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेलर देखना जरूरी है, 10 साल में मैं क्या होऊंगा, कहां तक पहुंचूंगा, क्या मुझे करना है, what I love to do, what is the job role that I want in the next 10 years that I will I remain as a business analyst or will I become a financial engineer? कई लोग आज की तारीख में बीटेक करते हैं, फाइनेंस की लाइन में आ जाते हैं। पता होगा आपको आज की तारीख में मैक्सिमम बीटेक स्टूडेंट्स दोज हु हैव ग्रोन दे बिकॉज ऑफ फिनटेक। पेटीएम क्या है? एक फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। नाउ यू नो पेटीएम हैज बिकम अ बैंक। तो अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको कि सर ये तो नॉर्मल बैंक, तो फिर क्या होगा इन लोगों का? अरे भयंकर चेंज होगा। जो लास्ट 10 साल में जो जॉब्स थे और जो नेक्स्ट 10 साल में जो जॉब रहेंगे, उसमें आसमान जमीन का फर्क रहेगा। शायद इसके 90% जॉब्स ही न रहे और उससे ज्यादा जॉब इसके अंदर आ जाए। तो क्या आप उस जॉब के लिए तैयार हो रहे हो? I hope you are getting my point that as a financial controller, अगर आप पिछले 10 साल के जॉब रोल्स को पकड़ पाओ तो आगे का भी सोच आपका बढ़ता रहेगा। हमको नॉलेज तो गैदर करना ही है जो हम बीकॉम में कॉलेज जाके करेंगे, बट हमको हमारी करियर भी सेट करनी है, क्योंकि डिग्री मुझे जॉब नहीं देगी, वो फंडा क्लियर है। मुझे अपने आप करियर को प्लान करके कोई ना कोई चीज में बैठना पड़ेगा। तो हमने क्या किया मोक्ष में, जो आपको चिराग जी अभी 5 मिनट के बाद में आके समझाएंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। Exactly at 8 o'clock, he is supposed to join us. He is right now in another webinar right now. So let me tell you what Moksh is going to do is, it has got created a program for all of you. We have entire industry professionals connected with Moksh at the moment. हमारे पास कमर्शियल बैंकिंग के कोई हेड हैं, हमारे पास इक्विटी रिसर्च के लिए कोई हेड है, बहुत ही हाई पोजीशन में जो भी बंदे हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, जो अपनी करियर में बन चुके हैं, दे आर ऑन आवर पैनल। they are at that stage of life where they just want to give something to the students. The mistakes that they did, the challenges that they faced, the problems that they went through, they really don't want the next generation to go through. They want to talk like me to every student, and we have every job role, we have multiple people with us who are trying to share this with all of you. They want to do something so that you can think about your career seriously. You can decide, I want to be working in a bank, I want to corporate, I want it in institutions, or I want it in accounting. अगर आप ये सोचते हो कि मैं IRS बन जाऊं, मैं गवर्नमेंट में चला जाऊंगा, मैं तैयारी करूंगा यूपीएससी की, वो एक अलग तरीका है। बट अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में सिर्फ लोकल आउटपुट नहीं है। मैंने पहले ही बताया, लोगों को मारामारी यहाँ करने दो, हमारी सोच बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई सीए का बात करता होगा, हम ACCA के लिए तैयारी करेंगे। आई होप ये ACCA इज अ ग्लोबल अकाउंटिंग charter. Once you have this ACCA, you can work in 175 countries across the world. If you are CFA, ये अलग चार्टर है। If you are FRM, ये अलग चार्टर है। If you are IRS, ये सब नहीं सुना होगा आपने। आपने क्या सुना है? सर CA बनो, CA बनो, CS बनो। अब ये जो सामने जो जॉब रोल्स दिख रहे हैं अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो ये कुछ भी जॉब ले सकते हैं, दुनिया भर में काम कर सकते हैं। काम करने की कमी नहीं है दुनिया में, काम की कमी नहीं है, जॉब रोल्स की कमी नहीं है, लोगों की कमी है जो इस जॉब रोल्स के लिए सुटेबल होते हैं। सो ऑल ऑफ यू गाइज, all I am trying to tell you is there are huge number of job roles. We have designed a program in which we are going to prepare you, first of all, make you interact with the professionals, industry professionals. Secondly, what we have done is we have created a program. In that first year of that, this stage you have to cross over. You have to say finally, yes, now I know what I am good at, and I know exactly now what I want to become. That
जॉब रोल आपको आपके लिए सूटेबल पहले से विजुलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष आपकी करियर डिजाइन करेगा, भाई ये प्रोग्राम आपका तरीका है, रोड मैप बताएगा, भैया ये रोड मैप आपका है, ये आपका एंड डेस्टिनेशन है, इस रास्ते पे चलते रहो, आपको काम आएगा। तो आपका ये ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है, आपके करियर के वो सामने प्रोग्रेस होना। पैशन किस में है वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट करके और दूसरे बहुत सारे एक्टिव सेशंस होके खत्म होगा, तो पता चलेगा कि आप किस चीज के लिए बने हो। और एक प्रॉमिस देता है कि हमारे पूरे प्रोग्राम जो बीकॉम के पैरेलल चलता है 3 साल तक, एक भी एकेडमिशियंस नहीं रहेगा, सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आके आपकी करियर को बनाने के लिए जुड़ जाएंगे। दिस इज एन extremely innovative program that every student does while doing BCom. This is a conventional track. आप कई लोग होंगे जो नॉलेज गैदर करेंगे, पर एम्प्लॉयबल बनने के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए, जो आपको ग्लोबली एम्प्लॉयबल बनाए, वैसे चार्टर्स चाहिए, ऐसे टेस्ट प्रिपरेशंस चाहिए, ऐसा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम मोक्ष ने खड़ा किया है। ये मोक्ष ने सिस्टम जो खड़ा किया है, इसमें कोई भी बीकॉम वाला बच्चा, चाहे वो 12th में एंटर हो रहा है या चाहे वो बीकॉम में अभी पढ़ रहा है, इनको टाइम कम रहेगा, इनके पास पूरा 3 साल है। वो 3 साल में क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे आपकी करियर को डिजाइन करके एक रोड मैप या ट्रैक में डाल के आपको कंटिन्यूअस आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया जाएगा कि आर यू मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, and are you getting ready for the global challenge to become an employability. Finally, before I hand over the screen to Mr. Chirag, I have 1 minute left with all of you. We make students skilled, employable, प्रोफेशनल एंड ग्लोबल। ये सिर्फ इंडिया के लिए काम नहीं आएगा, पूरा प्रोग्राम आपको ग्लोबल बनाएगा, ये आपको एब्सोल्युटली प्रोफेशनल बनाएगा। पहले मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि ये कंसेप्चुअली कुछ अपील कर रहा है कि हाँ मैं सब चीजों के लिए अच्छा नहीं है, मुझे अगर कोई बता दे कि मैं किस चीज के लिए अच्छा हूँ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो अच्छा लगता है उसी चीज में मेरी डिजाइन हो करियर की। क्या आपको ऐसा कुछ चीज की जरूरत लग रही है? आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना पैशन पता हो, और ऐसा भी हो सकता है आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ भी समझ में ही नहीं आता हो। सारा पॉसिबिलिटी है। तो हमने आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी डाला है। 50% of the students say I really need help to design my career. I am serious about it. Help me to make sure that I am happy in my career at the end of the day. मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा उसमें है तो उसकी तरफ भागना चाहता हूँ। I really want to enjoy working something. 33% ऐसे हैं कि जो आई नो माई पैशन सर, आई डोंट नीड टू नो, मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे पता है क्रिकेट में से पैसा कैसे निकालूं, बस मुझे वही जानकारी चाहिए। डिग्री कैसे काम आएगी वो बताओ मुझे गिटार बजाना है तो मुझे बताओ, मुझे फाइनेंस में बैठना है तो मुझे बताओ। सो आई नो माई पैशन। 17% मेरे से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है, मैं जो बोल रहा हूँ आधे घंटे से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। चलो आप भी मेरे से बात कर सकते हो, कभी भी पर्सनली हम लोग बात करके हम लोग कोशिश करेंगे। सभी लोगों को ये ट्रेन का पिक्चर जो है ना, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, जो ट्रैक वाला। बस अपनी करियर, जब कॉमर्स में आप 12th के बाद में फर्स्ट स्टेप डाल रहे हो, तो साथ में दूसरा पांव कहाँ रख रहे हो जो आपको स्किलफुल बनाए, जो आपको पैशनेट बनाए, जो आपके सीवी को एनहांस करे, जो आपको एम्प्लॉयबल बनाए। So once you are in that category, nobody can stop your progress. You will start differentiating yourself from the normal students. 98% को वही बीकॉम करते रहने दो, 2% को CFA करने दो, CPA करने दो, ACCA करने दो, FRM करने दो। ये कैसे होता है वो अभी आपको चिराग जी बताएंगे। So thank you guys for spending half an hour with me with such a interesting replies from all of you from the poll. I hope you have understood this, and I hope this kind of counseling is helping you. Let now Mr. Chirag, are you there with us? Sure. Thank you. Great. So welcome again, students, for this session. So in the last half an hour, sir has given you change is inevitable, और किस तरह से changes हो रहे हैं, and what you need to plan around. So next half an hour, we will make actually a roadmap how
to build a roadmap and what are the things जो जरूरी है और जिसको कंसर्न करके चलना है, ठीक है? So that is what we will discuss in the next half an hour. Any questions anybody has, you are free to type in on the question panel. You can also download the handout on the handout section, right? Great. So now quickly let us understand what exactly we are trying to say. Okay. Normal case में क्या हो रहा है? Typically, just because my friend, my uncle, everybody is saying कि यही करना है, तो people go a traditional way. Okay. Now traditional way में जब आप जाओगे तो वही result आएंगे जो लोगों के आते हैं. You know, they are not everybody is successful, and you know the challenges, and because अच्छा job नहीं होता, अच्छे skill set नहीं होते, तो then people try to escape, you know, escape route MBA में find करते कि चलो MBA के बाद कुछ life बन जाए, जबकि वैसे होता नहीं है. आपका जो अपने प्रोफेशनल करियर का फाउंडेशन होता है वो अंडर ग्रेजुएशन होता है. तो यहाँ पर आपने अगर सही से चीजों को सेट किया, then things are going to work you. Why? Because in real life what is happening, you need to do practical learning. Now that practical learning has to be very very clear in the sense that day one पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल है मार्केट में, आगे जाके कौन से करियर में बना सकता हूं, एंड उसको कंपेयर करना है विथ योर ओन पैशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली. द फैक्ट दैट यू नो व्हेन यू वॉक इन टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, आप हमेशा मेन्यू कार्ड पूछते हैं, करेक्ट है? आप ऐसे तो नहीं कहते कि यू नो सर्वर को कह देते हैं कि ओके वॉट एवर इज अवेलेबल प्लीज लेकर आओ, आप ऐसे नहीं कहते. इसी तरह से जब लाइफ का, करियर का इतना बड़ा डिसीजन लेना है, तो यू नीड टू नो व्हाट ऑल ऑप्शंस और करियर्स आर अवेलेबल विद इन कॉमर्स. तो इसके लिए व्हाट बेस्ट टू अंडरस्टैंड रादर देन स्पीकिंग फ्रॉम पीपल देमसेल्फ. आज मैं अगर एक सीएफओ से बात करूं कि एग्जैक्टली सीएफओ का काम क्या होता है, डोंट यू थिंक उसमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ताकि यू नो रादर देन कोई वेबसाइट पे पढ़ लूं अच्छा सीएफओ ऐसे ऐसे करता है. आज मैं कोई क्रेडिट एनालिस्ट से बात करूं, कोई हेज फंड मैनेजर से बात करूं, तो ये चीजें आपको जरूरी है पता होना. उसके अलावा करियर में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लगती है अदर देन योर डिग्री. तो वो क्या होती है, उसको कैसे आप नर्चर करोगे पैरेलल टू यूजी, उसका आपको सोचना है. एंड फाइनली आपको जो भी कोर्स करोगे उसकी ग्लोबल रेलेवेंस क्या है, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के चार्टर्स कौन से हैं वो भी समझना जरूरी है. बिकॉज ये सारी डिस्कवरी जब आप और प्रेपरेशन और प्लानिंग पैरेलल टू बीकॉम करोगे, दैट इज व्हेन यू विल अचीव अ जॉब विच यू लव. You will already have a live project in your job role before you join a job. You will already have virtual internship with industry and you will become a global financial professional. तो ये किस तरह से होता है, उसकी पूरी की पूरी जर्नी you will be understanding in the next few minutes. At any point of time, anybody has question, feel free to ask. We'll be happy to answer. All right. Now, why do I develop unique skills? Question ये है कि हम क्यों अलग बने. सर ने कहा कि आपको अलग बनना पड़ेगा, जो कॉमन रास्ता है वो नहीं चुनना. उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वी आर लिविंग इन अ वूका वर्ल्ड. वूका वर्ल्ड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, बट आज की दिन में जो वर्ल्ड है वो इतना वॉलेटाइल है. आप देख रहे हो किस तरह से डेली मार्केट चलती है. मार्केट एकदम वॉलेटाइल है. जो जॉब्स का फ्यूचर है वो एकदम अनसर्टन है. बहुत सारे लोगों को जॉब्स की दिक्कत आ रही है. जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया है. और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो एकदम एम्बिगुअस है. पता ही नहीं चल रहा है कब क्या पॉलिसी डिसीजन लिया जा रहा है. तो ये एक नॉर्मल चीज हो गई है आज के नए दौर में. तो आपको एक ही चीज समझना है, एक ही चीज कांस्टेंट रहने वाली है जिसका नाम है चेंज. तो जब तक आप अपने आप को चेंज के हिसाब से बदलोगे नहीं, अडेप्ट नहीं करोगे, ये बहुत डिफिकल्ट फेस रहने वाला है. ठीक है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप टू द चेंज, टू द न्यू थिंग्स कमिंग अप. डेली हम सुन रहे हैं किस तरह के नए नए न्यूज आ रहे हैं, तो उसको समझते हुए अपने आप को कैसे अडेप्ट करोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी डिड अ सर्वे, वी डिड अ रिसर्च विद लॉट ऑफ कंपनीज.
and we also referred a lot of important documents. So one of them was the World Economic Forum's Future of Jobs. तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है कि जनरली जब आप कोई भी जॉब के लिए जाते हो तो आप अपने कॉलेज और स्कूल की डिग्री से क्या लेकर आते हो? आप सिर्फ एबिलिटी और बेसिक स्किल लेकर आते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लोग अलग अलग चीज में रहेंगे अच्छे, कोई प्रॉब्लम सेंसिटिव में अच्छा रहेगा, कोई क्रिएटिविटी में रहेगा, कोई मैथ्स में अच्छा रहेगा, कोई विजुअलाइजेशन में रहेगा, किसी की फिजिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहे, फिजिकली एकदम स्ट्रांग रहेगा, किसी का ओवरऑल कंटेंट फॉर एग्जांपल एक्टिव लर्निंग सही है, राइटिंग अच्छी लगती है, रीडिंग में सही है, स्पीक अच्छा कर लेता है, या फिर प्रोसेस स्किल्स होगी कि चलो एक्टिव लिसनर है, क्रिटिकल थिंकर है, खुद का मॉनिटरिंग कर लेता है। तो ये सारे बेसिक स्किल्स होती है जो आप डिग्री और स्कूल में सीखते हो, बट जो जॉब में और जॉब वर्ल्ड में या अगर कोई अपना बिजनेस करना है उसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको ये क्रॉस फंक्शनल स्किल्स लगती है। तो इस क्रॉस फंक्शनल स्किल्स कौन सी है? फॉर एग्जांपल सोशल स्किल्स, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगोशिएशन, परसुएशन, सर्विस ओरिएंटेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे अपने फाइनेंस को संभालना, कैसे अपने टाइम को संभालना, कैसे अपने लोगों को संभालना, सिस्टम रिलेटेड स्किल्स, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। तो रियल वर्ल्ड में ये सारी स्किल्स लगती है जो 90% ऑफ लोगों को एक्सपोजर नहीं रहता, एंड दैट इज द रीजन वी हैव डिजाइन्ड अ प्रोग्राम जो यहां पर फोकस करे, which brings you the success of what is required on the job। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप जो कॉलेज में सीखते हो उससे ज्यादा ऑन द जॉब सीखते हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द जॉब? ऑन द जॉब का मीनिंग है ये सारी स्किल्स, ऑलराइट? तो दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू फोकस अपॉन, ओके? एंड हाउ आर वी एबल टू कंसिडर एंड डेवलप दिस? we'll be able to develop this by this international program called as the IFAF और इंटरनेशनल फाउंडेशन इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। हम किस तरह से ये प्रोग्राम में आपको हेल्प करते हैं वो भी आपको क्लियरली समझा देते हैं। दिस इज अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोग्राम जहां पे पहले तो आपको कौन से अलग अलग तरीके के जॉब रोल्स होते हैं फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, उसके सारे रोल मॉडल से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। After that we will try understanding what are your liking based on your aptitude, personality and also your interest। उसको आइडेंटिफाई करके हम फाइनली डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोफेशनल करियर आपको करना है। जैसे ही आपने अपना पैशन डिस्कवर किया, आपका प्रोग्राम सेकेंड ईयर से एक सेकेंड पाथवे में चला जाएगा जहां पे आप जॉब रोल फोकस काम करोगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे फोकस करोगे। दिस इज हैपनिंग बाय अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस एंड was created by the industry for the industry। and finally जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो आप फोकस करोगे ग्लोबल चार्टर पे, नॉट ऑन पीजी। एमबीए आपके लिए एस्केप रूट नहीं रहेगा, आप उसके पहले ही ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनोगे एंड यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन एनी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस। so this is a very different strategy which we are utilizing, and believe me currently everybody knows what is the competition। तो नए कंपटीशन में सक्सीड होना है तो इट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट लिसन टू हाउ पीपल हु आर सक्सेसफुल व्हाट आर दे डूइंग। सो यू नीड टू understand from these industry people what exactly is happening in the industry and then plan your career, because commerce is a huge field। IFAF के फाउंडेशन में हम आपको सारे जॉब प्रोफाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बट आगे जाके वेदर टू कंसिडर फाइनेंशियल मार्केट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल अकाउंटिंग, इसका डिसीजन हमें लेना है डिपेंडिंग ऑन द ईयर वन एक्सपोजर। ओके, once you decide on this, later on we can specialize in financial planning, fintech, trading, research और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क मॉडलिंग। तो आपको ये समझना है वेदर आई लाइक फाइनेंस एंड आईटी और वेदर आई लाइक टू talk about be very inquisitive। तो forensics है, audit है, taxation है, strategy है। so there are different career opportunities। please understand always हर एक
within finance and accounts, maybe if you speak to experts, there is a big domain, okay, of difference. For example, finance log kya karte hain, people who are in the finance field, they always plan for future, what will happen in the future. They talk about what is going to happen. And what do people in the accounts domain talk about? Past, what happened, okay. So they all talk about the tax, audit, forensic. तो वेदर आपको ऐसे करियर में जाना है जहां पे आप फ्यूचर का स्ट्रेटेजी करो, या फिर आप पास्ट में क्या हुआ है उसकी गलतियां फाइंड करो, तो ये छोटी छोटी स्किल सेट्स होती है जिसको समझना है, अकॉर्डिंगली आपका करियर प्लान करना है. ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, that you decide how you are going to plan your career. Okay, just don't go by the normal degrees. All right, absolutely Anshika, if you are considering a BCA program, आप BCA के पैरेलल भी ये कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप BCA कर रहे हैं और अगर फाइनेंशियल मार्केट करके आप फिनटेक फील्ड में जा सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर ले तो आप फाइनेंशियल एनालिटिक्स ये फील्ड में जा सकते हैं. तो yes, there are opportunities for IT engineering professionals also, जो फ्यूचर में कॉमर्स या फाइनेंस फील्ड में जाने चाहते हैं. ऑलराइट, सो ये प्रोग्राम एकदम सिस्टमैटिकली डिजाइंड है. ईयर 1 में आपको वर्ल्ड ऑफ बिजनेस होता क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, इनोवेशंस कैसा है, आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट ली जाएगी. नॉट राइट नाउ, लोग गलती क्या करते हैं, 12th एग्जाम के बाद टेस्ट करते हैं. नाउ 12th एग्जाम में प्रॉब्लम क्या है, आपको पता ही नहीं था आपका मेन्यू कार्ड, क्योंकि आपने कभी कोई इंडस्ट्री वालों से बात किया ही नहीं था, तो आपको तो पता ही नहीं था कि ऑप्शन होते क्या है. एक बार आपको ऑप्शन पता चल जाए उसके बाद इट मेक सेंस टू गिव ऑल ऑफ दीज टेस्ट. ओके, तो ये बहुत जरूरी है, आपको आइडिया आ जाएगी, उसके बाद अपना करियर आप डिसाइड कर सकते हैं. तो सेकेंड ईयर में आपको कुछ कंपलसरी मॉड्यूल्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल IFRS. What does IFRS mean? IFRS is International Financial Reporting Standards. IFRS में it's like a global language. For example, Tata as a company, okay, when people who are working with Tata, जो लोग को IFRS का नॉलेज है, it is like having knowledge of Spanish language, German language. फाइनेंस की इंटरनेशनल लैंग्वेज है. तो टाटा में जिनको IFRS ये आता होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो प्रोफेशनल्स टाटा की इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि जगुआर है, लैंड रोवर है, वो सारी कंपनीज में जॉब करते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो बिजनेस कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, एम्प्लॉयबिलिटी, ये कंपल्सरी मॉड्यूल्स होते हैं. एंड आगे जाके आपको इफेक्टिवली थर्ड ईयर में लेवल 1, लेवल FRM, CFA, NISM के जो कंपल्सरी मॉड्यूल्स होते हैं, प्लस वर्चुअल इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, ये इस तरह का पूरा प्रोजेक्ट है जिसको आपको सिस्टमैटिकली प्रिपेयर एंड प्लान करना है फॉर द नेक्स्ट 3 years. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन इज हाउ विल इट चेंज माय लाइफ. एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिनारियो समझने. फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास ओनली एंड ओनली बीकॉम डिग्री होगी और आज के डेट में अगर वो जॉब ढूंढने जाएगा तो टिपिकली ऑन एन एवरेज इतनी सैलरी मिलती है, 1.5 लाख सालाना. किसी ने बीकॉम के साथ टैली सीख लिया, चलो डिग्री के साथ एक स्किल सीख ली, तो 2 से 2.5 लाख सैलरी मिलेगी अक्रॉस द इंडिया एनुअली. किसी ने MBA कर लिया तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-3.5 लाख सैलरी आपको मिलेगी. ऑन टॉप ऑफ इट MBA जो किया उसकी भी तो फीस लगी, तो उतना आप पे लोन आ गया. आप समझ गए? CS कर लिया तो बढ़िया है, 4.5 लाख सैलरी है, आप डिग्री है, स्किल है, प्लस अ लोकल प्रोफेशनल. हाउएवर जो टॉप 2% के लोग हैं जो क्लियर है डे 1 से कि करियर कुछ डिफरेंट बनाना है, व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम डे 1, दे आर फोकसिंग ऑन डिग्री, स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी एंड अ ग्लोबल, एंड विच इज व्हाई दे आर ऑन द टॉप नॉच ऑफ द सैलरी बार. तो आपको ये सिनारियो समझना है एंड आप सिर्फ कंपेयर करो विद पीपल अराउंड यू. यू विल फाइंड ईच वन ऑफ यू विल बी फाइंड, ओ ये देखो सो एंड सो है, ये सिर्फ बीकॉम, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ हिज लाइफस्टाइल इज. आप आपके आसपास ही ऐसे सारे लोगों को देख पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे, जिस आप चाहे अपने फैमिली में देखो या फेसबुक पे देखो
या अपने कोई भी सोशल सर्कल में, यू विल रियलाइज दिस इज द रियलिटी। क्यों? कुछ लोग ज्यादा सक्सेसफुल है, कुछ लोग नहीं है। इट्स ऑल अबाउट करियर प्लानिंग सिस्टमैटिकली, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई people have stopped this arm zindagi and why people are considering the new mentor zindagi? Why are they considering? The reason is very simple. World is changed, एकदम बहुत डिफरेंट वे में। आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक फोर्ब्स का आर्टिकल आया, यू जस्ट टाइप MBA और फोर्ब्स इंटरनेशनल मैगजीन है, ठीक है। तो आप फोर्ब्स के ये आर्टिकल को जरूर पढ़ना, हमारे टीम मेंबर्स आपको शेयर करेंगे कि इज एन MBA वर्थ इट आफ्टर कोविड-19? एब्सोल्युटली नॉट। ये जून 25 2020 का आर्टिकल है। तो चीजें बदल रही है, ओके। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम CNBC का भी आर्टिकल पढ़ लेते हैं। CNBC क्या कहता है? CNBC आज नहीं 2 साल पहले, CNBC वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल है। 2 साल पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स विल नॉट बी कॉलेज डिग्रीज, इट विल ऑल बी अबाउट स्किल्स। आप समझ गए? So this is the reason it is very, very important for each one of us to think different, think unique. It is important that we identify what is the right option by speaking to the right people. First of all, know, okay, ये मेरे 360 options है। आपकी 360 डिग्री व्यू हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगी। Then you are in a position to actually aspire, explore, execute and achieve your dream. This is very, very important for each one of you, okay? You need to understand very importantly कि इंडस्ट्री में कोरोना के बाद एक तो क्लैरिटी आ गई है लोगों को कि ऑन द जॉब किसी को ट्रेनिंग नहीं देंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लेकर आओ और फिर डायरेक्टली अच्छे से परफॉर्म करो। तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी करना है, आगे जाके खुद का बिजनेस करना है और एज अ कंसल्टेंट एनी ऑफ द इंडस्ट्री में वर्क करना है, आपको रेडी होना पड़ेगा फ्रॉम डे 1। दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री विल नाउ पोस्ट कोविड एक्सेप्ट पीपल हु आर going to be very serious about their career and plan things in advance. So how do I take my first step to success? So this is how it will begin. The batches are starting from 15th August 2020, okay? I will invite you to actually start attending these sessions and become something different. Okay, this is the right time for you to consider this career, choose these international global degrees and have a great success in your life. All right, it is very important कि आप चीजों को समझिए। We are located in almost 40 plus locations across India. You can connect with us online on these numbers and arrange for a personalized counseling session. आप physically ये कोई भी centers में visit कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपके करियर का पहला स्टेप आप ले। ऑलराइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इस साल आपको पता है कॉलेज एडमिशन आगे पीछे होने वाला, नो प्रॉब्लम, बट करियर वोंट स्टॉप। यू कैन बिगिन योर IFAF from 15 so that you are on track with your career. This is very, very important. All right, I hope this is clear. Plan your career accordingly. Great. So I wish you all the very best, and I hope today's session actually helped you. I am just request if I can get a feedback. Was it helpful? No, yes. And definitely we will be conducting many more sessions. So you are always welcome to attend such sessions. So quickly, if you guys can let me know, did the session helped you? Yes, no, and definitely recommend your friends as well to attend this session. And yeah, we just want that you take the correct pathway. All right, it is important that all of you take the correct pathway to succeed. All right, great. Thank you very much everyone, and I wish you all the very best and hope to see you soon in the next few sessions. Thank you very much everyone. Thank you.